Hello everyone, same welcome again. My same class correlation and rank correlation. Last time we have discussed a lot of things about the correlation, type of correlation, and how do we measure the correlation through a different formulas and different method like in a scatter diagram and through a Carl Pearson method. So again we revise all these things in a fast manner. Just like a correlation is basically the define the relationship of two variables in terms of degree and in terms of the what is the direction is there. So the representation of correlation through a small r, and the value of small r is -1 to +1. So correlation has a different type in terms of the different direction wise, and the positive correlation, negative correlation. When the positive correlation values is that when the two variables changing with the same direction, and negative correlation जब values of the variables change with the opposite direction. So positive is a term of the when x is increased, y is increased, x is a decrease, y is decrease. And negative correlation, x is increased, y is decrease, and x is decrease, y is increase. So different terms, different example is there. We already study what is the difference between a positive and negative correlation. And another term of the correlation is a simple and multiple, partial and total. We defined last time. Simple is when we define the relationship between the two variables. That is a simple correlation. When the relationship define a three and more variables, that is a multiple correlation. Partial correlation when we discuss two variables, but we consider only one. We consider basically a partial correlation when we study a two or more the variables, but we consider only two variables. That is a partial correlation. Total correlation when the all relevant variables are studied uh, in term of correlation, but it is not be feasible in practical way. So that is a total correlation. Linear, non-linear is a term that is a when the correlation is sum of the linear, that is a change about the amount is constant ratio is there. And when constant is ratio is not on a constant way, when the ratio is not be a constant way, that is a non-linear correlation. So different thing is that correlation and causation, and define a different method is there. Graphical scatter diagram, correlation graph, and average algebraic method. We define a Carl Pearson method, rank correlation, and concurrent derivation. uh, so a scatter diagram is basically a graph that is a define the values of x or y, and different figure is there is a perfect positive correlation, ideal positive correlation, moderate positive correlation, perfect negative correlation, moderate negative correlation, weak negative correlation, and no correlation when the points are in a parallel term. So different type of the direction, advantage, disadvantage I discussed last time, and a correlation graph is represented in this manner. Carl Pearson, we discussed a lot of three method is there. First is the actual mean method, second is assume mean method, and third is basically direct method, here actual data method. Okay, so now in this time I discuss a different topic regarding the variance, that is also called via covariance. So in this method we also identify the what is the value of the correlation and what is the degree of correlation is there, and a simple formula is there. R is equal to covariance of x and y oblique अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई. इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डॉट एक्स वाई. तो कोवेरियंस जो होता है उसको हम एक तरीके से निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन. जो स्मॉल एक्स होता है इज द रिप्रेजेंट ऑफ द एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार इज स्मॉल वाई. तो इसको हम तीन मेथड से निकाल सकते हैं सेम लाइक दैट. तो जैसे हम यहाँ पे वैसे एक्चुअल मीन से निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ सिंपल वे. तो उसी तरह से निकालते हैं. आर की जो कैलकुलेटिंग वे होती है वो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो एक प्रैक्टिकल वर्जन में देख लें कैसे हम कोवेरिएशन निकालते हैं. तो दैट इज़ अ वैल्यू. अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होती है, तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू में टोटल निकाल लेते हैं. पहले सिग्मा एक्स निकाल लिया और सिग्मा वाई निकाल दिया, एक्स मीन की वैल्यू निकल गई. जैसे सिग्मा एक्स हमारा 162 आया, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 9 है, तो दैट इज़ अ सिग्मा एक्स हमारी जो आई है सॉरी एक्स बार जो आया वो 18 आया है, और वाई बार जो आया वो 19 आया है. तो बोथ एक्चुअल मीन इज 18 एंड 19. तो हम स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स माइनस 18 कर देते हैं और वाई माइनस 19 कर देते हैं. तो हमारी जो वैल्यूज आ जाती हैं वो हम निकाल लेते हैं. इसके साथ ही हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों का टोटल कर देते हैं, इंटू कर देते हैं एक्स और वाई का. एक्स वाई का टोटल जो इंटू क्या है, वैसे ही हम वैल्यूज जो होती है हमें सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी. तो कोवेरियंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई एक्स वाई अपॉन एन. तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन कर दिया आपका 431 अपॉन 9 करते हो 47.89 है. दैट इज अ सिंपल मेथड टू आइडेंटिफाई द कोवेरियंस.
एक कोवेरियंस का और फॉर्मूला है जिसमें हम सीधे से यूवी करके निकालते हैं, यू इज एज्यूम मीन के बेस पे निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन में एज्यूम मीन जैसे बेस होता है। तो जब वैल्यूज आपके डबल डिजिट में हो, 60 70 100 के डिजिट में हो, तो वी ट्राई टू बी एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में हम सीधे क्या करते हैं, यू और वी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, जस्ट लाइक है ना, डिफरेंट जो होता है वो बस आपका जो थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट होता है, सिग्मा यू वी अपॉन एन होता है और सिग्मा यू अपॉन एन और सिग्मा वी अपॉन एन होता है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे जो एज्यूम मीन माना है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स में जो है एज्यूम मीन 69 माना है और वाई में जो एज्यूम मीन माना है वो 70 माना है। तो यू की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा यू की वैल्यू निकल जाएगी, सिग्मा वी की वैल्यू निकल जाएगी और यू और वी को इंटू कर देंगे, उसके बाद सिग्मा यू वी की वैल्यू निकल जाएगी। तो डायरेक्ट वी पुट इन द फॉर्मूला, सिग्मा यू वी इजकल 12/7, सिग्मा यू का 0 आ रहा है, सिग्मा वी का 9 आ रहा है, -9/7। तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज अ 1.7, दैट इज अ को वेरियंस। तो जो को वेरिएंस होता है उसके यहाँ पे हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के भी हम कर सकते हैं, वैल्यू आर की निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कोवेरियंस इज अनदर मैटर कि हम कैसे कोवेरियंस निकालते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज के टर्म में बात करें तो कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द आर, उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है। -1 इज रिफ्लेक्ट इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड +1 is reflect is a perfect positive correlation. Okay, if the scale of series are changed or the origin in a shifted, so there is no effect on the value of the r. अगर कोई भी चेंजेस आते हैं इन सीरीज में या ओरिजिन ऑफ द सीरीज में तो उससे आर की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट। आर जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट का, बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स। तो टू लाइंस होती हैं इन रिग्रेशन इक्वेशन में जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एक एक्स टू वाई होती है, देन इज एस वाई टू एक्स। तो उन दोनों का जो भी ज्योमेट्रिक मीन होता है दैट इज रिग्रेशन। बोथ आर द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट, इफ एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होता है। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू, बट कभी कभी ये चीज़ नेसेसरी जरूरी नहीं है कि सही हो। R is a pure number and is dependent on the unit of measurement. The coefficient of correlation between the two variables x to y is symmetrical. चाहे आप आर वाई एक्स निकालिए चाहे आर एक्स वाई निकाल लीजिए, दोनों सिमेट्रिकल होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब कहने का मतलब है वाई का अगर एक्स के साथ रिलेशन निकालेंगे या एक्स के साथ वाई का रिलेशन निकालेंगे तो वो आर द सेम। Two errors is there. First is a probable error and second is a standard error. Is probable error used for test the reliability of Karl Pearson coefficient of correlation, and a simple formula is there: 0.6745 into 1 minus r square upon under root n. When you identify the correlation, that means you got an r value. आर वैल्यू जैसे ही मिल जाती है आप आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो प्रोबेबल एरर में जो भी वैल्यू इंटरप्रिट होती है कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, अगर इफ आर की जो मोड वैल्यू है ग्रेटर देन 6 है तो देन आर इज अ सिग्निफिकेंट। अगर आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 6 है दैट आर इज इनसिग्निफिकेंट इन द टर्म बोला जाता है प्रोबेबल एरर। अगर प्रोबेबल एरर में मतलब 6 से ग्रेटर या 6 से लेस देन है तब दैट, तो आर इज अ इनसिग्निफिकेंट, इट मींस दैट देयर इज अ नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोरिलेशन बोथ द सीरीज। तो इस तरह कोरिलेशन नहीं होता। प्रोबेबल एरर आल्सो डिटरमाइन द अपर एंड लोअर लिमिट विद इन ईच ऑफ कोरिलेशन ऑफ रैंडम सिलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द सेम यूनिवर्स विल फॉल। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में हमें आइडेंटिफाई हो जाता है इसमें। अगर स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर में सिर्फ अगर हम 0.6745 को छोड़ दें तो वी गेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो आर की वैल्यू होती है दैट इज अ गिवन बाई, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो इसको हम कैलकुलेशन जैसे ही आर की वैल्यू निकालते हैं वैसे ही हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो इस पे हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है उसमें हम करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन इज देयर कि रैंक जो भी कोरिलेशन होता है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बट इन द रैंक कोरिलेशन वी आइडेंटिफाई द फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द व्हाट इज द रैंक we given, then we identified the what is the correlation between of it. So that is a Professor Spearman given as a 1904, और is this method से correlation between a qualitative aspect से अगर देखा जाए तो intelligence, honesty, beauty इससे can be calculated हो सकती है। ये क्वालिटेटिव टर्म में कोरिलेशन अगर क्वालिटेटिव टर्म में हम निकाल सकते हैं तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। दीज वेरिएबल कैन बी असाइन रैंक्स बट देयर क्वांटिटिव मेजरमेंट्स इज नॉट बी पॉसिबल। हम वेरिएबल्स को रैंक में दे देते हैं बट क्वांटिटिव मेजरमेंट्स नहीं कर सकते ये है। तो जो डिनोटेड होता है दैट इज आर इजकल टू, जो फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे जो यहाँ पे जो स्क्वायर रैंक का फॉर्मूला होता है उसमें कैपिटल आर का मतलब होता है कैपिटल आर इजकल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन
ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन। तो आर यहाँ पे होता है रैंक कोरिलेशन, डी होता है डिफरेंस बिटवीन अ टू रैंक, एन जो होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो एज इन अ केस ऑफ आर, अगर केस आर के टर्म में देखें तो आर की वैल्यू भी यहाँ माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है। द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर जो सम है अगर टोटल रैंक डिफरेंस का, वो ऑलवेज हमेशा जीरो होना चाहिए। तो थ्री केसेस इन रेस्पियर रैंक में कोरिलेशन, जब हमें रैंक दी हो, जब हमें रैंक नहीं दी होगी, और तीसरा कंडीशन होती है जब हमारी टाई रैंक कंडीशन हो रही है। तो हम पहला क्वेश्चन जो देखते हैं इन प्रैक्टिकल वे में देते हैं, व्हेन आवर रैंक्स आर गिवन। तो हमारी डिफरेंट आपको रैंक दे रखी है, हमें कैसे पता चलेगा जो रैंक हमें दी है कि नहीं दी है ना? क्वेश्चन मैक्स ऑलरेडी बोला होता है, जैसे यहाँ पे टू लेडीज रैंक इज 10 डिफरेंट टाइप ऑफ लिपस्टिक्स, द रैंक गिवन इज द डैम एज फॉलोज। तो दो लेडीज़ों की रैंक दे रखी है, और रैंक हमेशा वन से लेके होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 आपको यहीं पे मिल जाएंगे, और जो हाईएस्ट रैंक जो रैंक गई है दैट इज़ अ 10th। और पी में भी ऐसे ही है, 1 2 से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो रैंक हमेशा 1 2 3 के टर्म में दी जाती है। तो यहाँ पे आपको सीधे पता जाएगा कि हमें रैंक दी गई है। तो जैसे कि R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि रैंक हमने दे रखी है, तो R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, आपने डिफरेंस निकाल लिया, R1 माइनस R2 करके उसका स्क्वायर कर दिया तो डी स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको। जैसे R1 6 माइनस 3 किया तो 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। तो ये आपको जो वैल्यू पहले अगर डी निकाल रहे हैं तो डी क्या होता है? R1 माइनस R2 होता है, डी स्क्वायर मतलब R1 और R2 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारे, हमें जो मेन वैल्यू चाहिए होती है वो सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए होती है। तो 5 माइनस 8 किया तो आपका -3 आया, -3 का कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसी तरह से बाकी सबका हम डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 36 मिलेगी। सो डायरेक्टली हम फॉर्मुले में पुट कर देते हैं, क्योंकि रैंक हमारी गिवन है। तो आर इजकल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। तो 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर आपको 36 मिल गई है। और जो रैंक, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, तो 10 का क्यूब माइनस 10, तो आपकी जो वैल्यू मिल गई है 0.782। तो सेम लाइक दैट, जब हमें रैंक इज नॉट गिवन, तो रैंक जब हमें नहीं दी जाती है तब हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, वो हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। सो सबसे पहले, क्योंकि कैलकुलेट इसमें इन क्वेश्चनों में ये देखा जाता है कि हमको रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, एंड इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होता है कि दैट इज़ अ रैंक गिवन। और इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी नंबरिंग्स होती है, जो डिजिट्स होते हैं, वो 1 2 के टर्म में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कहीं से भी नंबर स्टार्ट होते हैं और कहीं पे फिनिश हो जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 के टर्म में तो नहीं दे रखे हैं, तो और यूनिक है कि नहीं, यूनिक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखने से रैंक को रिलेशन कॉफिशिएंट है, जैसे एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे हम क्या करते हैं, इसमें दो मेथड होते हैं। टर्म ऑफ द गिवन ऑफ द रैंक, या तो आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दीजिए, या तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू को रैंक फर्स्ट दीजिए, दैट इज अ डिपेंड ऑन यू। लेकिन जो भी रैंक आप फर्स्ट सीरीज में दे रहे हैं, मतलब एक्स सीरीज में दे रहे हैं, वही रैंक आपको वाई सीरीज में भी देनी होगी, उसी मेथड के थ्रू, जस्ट लाइक दैट। कि अगर आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो वाई सीरीज में भी हाईएस्ट वैल्यू को 1 ही दीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है हमने उसको 1 दिया है, तो 100 यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो हमारी रैंक क्या है? लोवेस्ट वैल्यू से 1 जा रही है, मतलब हम लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो वाई सीरीज में भी हमारा जो लोवेस्ट है वो हम देख लेते हैं। तो लोवेस्ट हमारा 50 है, तो लोवेस्ट में भी 1 ही रैंक दी है। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं रैंक कैसे दी है इन्होंने, जो लोवेस्ट रैंक से। तो रैंक जो है 100 है, 1 हो गई। 100 के बाद जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज 110, तो 2 हो गई। 120 हो गई। 110 के बाद 115 3 हो गया। 115 के बाद 24 हो गया। और 15 के बाद 120 के बाद 134 है, तो फिफ्थ हो गया। 134 के बाद 40 है, तो सिक्स। 142 सेवन्थ, एंड लास्ट इज 8। तो टोटल मिला के 80 नंबर होंगे, तो उतने तक ही रैंक जाएगी। तो सेम लाइक दैट इधर भी यही किया है हमने। लोवेस्ट रैंक 1 हो गई, और उसके बाद जो हाईएस्ट है 50 के बाद वो हमारी 60 हो गई, तो 2। 60 के बाद हमारा जो हाईएस्ट रैंक है 73, और 70 के बाद 75 4। 75 के बाद जो हमारी रैंक है वो 85, 81 6, और 88 7, और 95 लास्ट 8 है। तो बोथ रैंक मिल गई, बोथ रैंक का माइनस कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 माइनस 4 जीरो होता है, उसका स्क्वायर भी जीरो होगा। 5 का माइनस 7 से किया तो 2 आएगा, -2 आएगा, और 2 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा। ओके, और यही हमारा यहाँ हुआ। 8 माइनस 8 करा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0। 3 माइनस 3 करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0। 2 का स्क्वायर 0। 6 को -5 से करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 7 को 6 का करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 1 0 होगा। तो टोटल मिला के सिग्मा टी स्क्वायर आपकी कितनी वैल्यू आ गई? 6 आ गई। डायरेक्टली हम इसको पुट करेंगे अपने
पुट करेंगे अपने रैंक कोरिलेशन में, तो 1 - σ6d² / NQ - n। तो 1 - 6 σd × 6 × 6 हो गया, और क्योंकि रैंक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 8 है, तो 8Q - 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.929, ये हमारा रैंक आ गई। तो दैट इज़ जो भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो अगर +1 और -1 के बीच में कंसाइड नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स यू, तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे आपको पता जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगर हम ये बात करें कि जब रैंक टाई हो जाती है, रैंक टाई होने का मतलब है कि जब कई बार क्या होता है सेम नंबर्स आ जाते हैं तो रैंक टाई हो जाती है। तो इसका यहाँ पे सीधे कंसिडर व्हेन 2 or more आइटम्स हैव द इक्वल वैल्यू। जरूरी नहीं है कि दो ही वैल्यू हों, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ भी अगर होती हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है वहाँ पे टाई हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन रैंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एवरेज रैंक असाइन करते हैं। तो दैट इज़ अ इक्वल वैल्यू में हम असाइन करते हैं लेकिन रैंक आगे बढ़ाते हैं। तो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, मोस्ट टाइम इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इज देयर। तो जैसे आर की वैल्यू जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो थोड़ा चेंज होता है। R = 1 - 6 रहता है, और ब्रैकेट में σd² प्लस MQ - M/12 MQ - M/12 प्लस डैश डैश, जहाँ तक जितने भी नंबर ऑफ आपके कॉमन होते हैं वो डिपेंड करता है। तो लास्ट में आपका n/n² -1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स का टर्म्स होता है। तो कोरिलेशन फैक्टर ऑफ MQ - M इज एडेड टू अ 6 σd इसको सच नंबर ऑफ आइटम्स एज द केस ऑफ इक्वल रैंक्स इन द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे जो भी कोरिलेशन फैक्टर होता है उसमें हम σd² को जोड़ते हैं ताकि नंबर ऑफ टाइम एज द केसेस ऑफ इक्वल रैंक्स को हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो एक क्वेश्चन इसी तरह से हम ले लेते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमारा हमसे बोला गया कि फाइंड द रैंक कोरिलेशन। बेसिकली यहाँ रैंक दी नहीं हुई है, तो हमें रैंक कोरिलेशन में रैंक सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है। तो यहाँ पे स्टैटिक और कोस्टिंग के बीच में रैंक कोरिलेशन, इस पर रैंक कोरिलेशन निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको कार्ल पियर्सन निकालना है कि आपको स्पेयरमैन निकालना है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी है। और सबसे जो छोटी वैल्यू है यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को हम 1 असाइन करेंगे। तो एक्स सीरीज में देख लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 23 है, तो हमने 1 असाइन कर दिया। 23 के बाद जैसे ही 1 मिनट, जैसे ही हम थोड़ा सा आई टी क्लिकिंग द माउस। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो 23 है उसको हमने असाइन कर दिया, 1 हो गया। तो ये हमारा ऑलरेडी हो गया है, ये हो चुका है। और इसके बाद 23 के बाद जो हमारी सबसे वैल्यू है छोटी है वो आपकी क्या होगी, 27 है, इसको 2 असाइन कर दिया। उसके बाद हमारी 28 है। तो 28 जो है वो यहाँ पे भी है आपकी, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, 3 जगह है। सो 28 आपकी 3 जगह कॉमन हो रही है, 3 टाइम्स आपकी वैल्यू आ रही है। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ द इक्वल रैंक। तो हमने क्या किया है, अभी तक 1 और 2 को दिया है, 1 और 2 को दिया है। तो हमारी जो रैंक जाएगी वो आप क्या जाएगी, अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो थर्ड जाएगी, फोर्थ जाएगी और फिफ्थ जाएगी। ओके, अगर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जाएगी तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन रैंक दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 नंबर ऐसे हैं जो मतलब कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस 3 + 4 कर लेते हैं। मतलब टोटल करेंगे, 3 + 4 + 5 करेंगे तो आपका टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 3 + 4 आपका 7, 7 + 5 आपका हो गया 12। तो 12/3 एक एवरेज निकालें, क्योंकि 3 नंबर है तो एवरेज निकाल लिया। तो 12/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 28 है वहाँ पे हम कॉमन दे देंगे 4। देखिए यहाँ पे मैंने 4 दिया, यहाँ पे 28 है तो 4 आ गया, यहाँ 28 है तो यहाँ पे 4 आ गया, सेकेंड लास्ट आपका 28 है तो 4 आ गया। ठीक है, कैसे दिया आपको फिर से बता दे रहा हूँ। क्योंकि 2 रैंक वी आर गिवन, 23 27 को 2 रैंक्स हमने दे दिया था, और 28 हमारा 3 टाइम्स था। तो हमारी कौन कौन सी रैंक जा रही थी, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो तीनों का हमने सम किया, तीनों का हमने एवरेज निकाला, रैंक का एवरेज निकाला। 3 + 4 + 5 तो 12 आया, और बाई 3 कर दिया, क्योंकि 3 नंबर्स थे तो 3 का एवरेज कर लिया तो 4 आया। तो हमने जहाँ जहाँ था वहाँ 4 दे दिया। अब हमारे 28 के बाद जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 29 तो है नहीं, 30 है। तो 30 हमारी कौन सी रैंक हो जाएगी, क्योंकि 3 4 और 5 तो हमने दे दिया। तो हमारी 30 क्या होगी, 6th रैंक होगी और 7th रैंक। तो 30 भी 2 बार है, अगर आप देखेंगे तो 30 भी 2 टाइम्स है, ये भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है।
तो ये रैंक जो आपको गिवन, जो आप रैंक दे रहे हैं वो कौन सी रैंक दे रहे हैं, 6 और 7 दे रहे हैं। अब 6 और प्लस 7 करेंगे, देखिए रैंक ही कॉमन देनी होती है, रैंक एवरेज निकालते हैं। तो 6 प्लस 7 आपका कौन सा रैंक हो गया, मतलब 13 आ गया। 13 आ गया क्योंकि दो ही रैंक है तो बाई टू, तो 13/2 करेंगे तो 6.5, तो इसीलिए 30 के सामने 6.5 लिखा है। ओके, 13 के आपके सामने आपको 6.5 लिखा होगा। तो 13 के बाद 16.5 हो गया, तो दोनों में हम 65.5 लिख दिया। तो 6th और 7th रैंक हमारी हो चुकी है। 30 के बाद जो हमारी हाईएस्ट रैंक है 33 है, तो हमारे सामने कितना लिखा है, 8 लिखा है। ओके, 33 के बाद 35 हमारी नेक्स्ट रैंक है, तो 8 के बाद हमारी नेक्स्ट रैंक होगी 9th। और 38 हमारा हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे, तो 10th रैंक। अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 10th ही नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th रैंक। तो ऑल दीज आर रैंक्स आर 10 तक होंगे, 1 से लेके हमें 10 तक करना है। उसी तरह सेम वाई के लिए भी हम करते हैं, तो वाई में हम क्या करते हैं, जो सबसे लोवेस्ट रैंक है वो देख लेते हैं। तो 18 आपकी लोवेस्ट रैंक है, तो 1 हो गया। उसके बाद 20 आपकी सेकेंड रैंक हो गया। 20 के बाद जो थर्ड है वो आपका 22 है। तो 22 आपका एक बार यहाँ कॉमन हो रहा है और एक बार यहाँ कॉमन हो रहा है, तो दैट इज 3 और 4। मेरे ख्याल से हमने कितनी रैंक दे दी थी, फर्स्ट रैंक दे दी थी 18 को, सेकेंड रैंक दे दी थी, और हमारा जो है वो सेकेंड रैंक हो गई थी। थर्ड रैंक ऑलरेडी गिवन हो गई थी, 21 जो थी हमारी, 21 इज रैंक गिवन हो गई थी। तो 22 थी हमारी जो फोर्थ और फिफ्थ की रैंक ले रहा था। तो फोर्थ और फिफ्थ की रैंक में जो है वो उसका एवरेज निकालेंगे, 4 + 5 = हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। तो दैट इज रिप्रेजेंट 4.5। तो 4.5 देखिए आपने 22 के सामने 4.5 लिखा है, तो 5 तक की रैंक हो गई थी। और 22 के बाद जो हाईएस्ट नंबर है, दैट इज 22 के बाद जो हाईएस्ट रैंक है वो आपकी 27 है। तो 27 यहाँ पे भी है आपका, 27 देखिए आपका कहाँ पे है, 27 यहाँ पे है आपका, 27 यहाँ पे है आपका। तो ये दो जो रैंक ले रहे हैं वो 6th और 7th रैंक ले रहे हैं। तो मिड क्या हो गया आपका, एवरेज क्या हो जाएगा, 6.5, तो 6.5 आपने दे दिया। ठीक है, 27 के बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा वो 29 है। और 29 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो शायद 7 तक रैंक चली गई थी, अब ये 8 9 10, तो 8 9 10 का आप करेंगे तो 8 + 9 + 10, तो 10 + 9 19, और 8 से आपका 27 आ गया। 27/3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका 29 है वहाँ पे आपने 9 रैंक दे दी। तो ये आपकी सारी रैंक्स कंप्लीट हो गई। रैंक्स आपने इक्वल रैंक्स दे दी हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से नंबर्स आपने कितनी बार लिए हुए हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर दैट। तो अभी हम कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे। तो R1 और R2 की वैल्यू हो गई, R1 R2 की वैल्यूज आपकी हो गई, तो आप माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर निकाल दिया। 6.5 का 9 से माइनस किया तो 2.5 आएगा, माइनस का उसका स्क्वायर करेंगे तो 6.25। इसी तरह 10 का 6.5 से करेंगे तो 3.5 आएगा, इसका स्क्वायर होगा 12.25। 4 का 4.5 तो -0.5 आएगा, 2.5 तो पॉजिटिव में ही आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर जो तो 271.5 है। अब जो फॉर्मूला है उसमें क्या है कि उसमें आपका जो फॉर्मूला है वो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 1/10 MQ - M। अभी कितने नंबर तक जाएगा हमें नहीं पता होगा, ठीक है, लास्ट में आपका NQ - N है। अब जितने नंबर भी रिपीट हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं जो हमारा नंबर रिपीट हुआ था। सबसे पहले नंबर कितना, जो 28, जस्ट अ मिनट, चलो दूसरा ले लेता हूँ। तो 28 जो रिपीट हुआ था, मैं पहले लिख लेता हूँ। 28 जो रिपीट हुआ है आपका, वो आपका 3 टाइम हुआ है। एक्स सीरीज में पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स सीरीज में जो बात कर रहे हैं वो 28 आपका कितनी बार रिपीट हुआ था, 28 आपका 3 टाइम रिपीट हुआ था, ठीक है। 30 आपका कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 टाइम। तो हम 30 को रिपीट कर लेते हैं 2 टाइम, ठीक है। मेरे ख्याल से 30 28 हो गया था, और एक्स सीरीज में और कोई तो रिपेयर हुआ नहीं था, 28 और 30 हुए थे, ठीक है। वाई में क्या हुआ था, वाई में 22 2 बार हुआ था, 22 जो है आपका 2 टाइम्स हुआ था। तो 22 आपका कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है वाई का कितना है, 22 कितना बार हुआ है,
2 टाइम्स हुआ है, ठीक है। उसके बाद 27 2 टाइम्स हुआ है, 27 कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। 27 मान लेते हैं हम, 2 बार रिपीट हुआ है। 27 को हम सही से बना लें, 27 हमने 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 22 हो गया, 27 हो गया, 29 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम हुआ है। लास्ट आपका 29 ही है, 29 आपका 3 टाइम रिपीट हुआ है। अब देखिए कितनी बार वर्ड्स रिपीट हुए हैं, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुए हैं। तो एम क्यू वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो 5 बार लगेगा, तो यहाँ पे भी आपको देखिए 1 2 3 4 5 बार लगा है, और अपॉन एम क्यू माइनस एन हो गया। अब जहाँ यहाँ एम की वैल्यू क्या होती है, पहली बार देख रहे होंगे तो एम की वैल्यू क्योंकि 28 3 बार रिपीट हुआ, तो फर्स्ट टाइम में एम की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, Q-3 पहले बार एम की वैल्यू। दूसरी बार 30 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 की पावर Q-2। तीसरी बार 22 की भी 2 बार रिपीट हुआ है तो अब देखिए दो दो वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 3 बार होनी चाहिए थे। तो यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बार 2 की वैल्यू और 2 बार 3 की वैल्यू, तो 2 बार 3 की वैल्यू पुट हो गई। तो एम की दो वैल्यू ऐसी होंगी जो 3 बार रखी जाएंगी, और एम की दो वैल्यू ऐसी होंगी जिसमें 3 वैल्यू रखी जाएगी, और एम की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जिसमें 2 रखी जाएंगी, मतलब 3 वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें 2 रखा। तो हमने 2 रख दिया है, तो 2 रखा, तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। तो जैसे इसको सॉल्व किया तो 3 की पावर क्यूब आया, तो 27 3 की पावर Q-3 हो गया। तो 3 3 9 9 3 से 27, 27 माइनस 3 किया तो 24 आ गया। तो 12 2 से 24 2 आ गया। 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 का माइनस 6 होता है, 1.2 आएगा, 0.5 आ गया, इसी तरह 2 आ जाएगा, यहाँ 24 आ गया, क्यूब 2 आएगा, 0.5 0.5 आ गया। तो इन सबको ऐड कर लिया तो ये आ गई, सॉल्व कर लिया तो दैट इज 0 माइनस 0.35। तो इट इज़ वेरी क्लियर ना हो कि भाई कि कैसे हम एम की क्यू की वैल्यू निकालते हैं, और इक्वल हम रैंक में क्या करते हैं। बस यहाँ पे इक्वल रैंक में यही चीज़ एक टफ है कि कैसे हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें सॉल्व करने के लिए भी निकालना होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस हमें देखना है कि कौन सी रैंक कितनी बार जा रही है, और क्लियरिटी किस तरह से आना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में जो रिपीटिशन है, जहाँ पे यहाँ पे भी मेंशन है कि वेयर एन रिफर्स द टोटल पेयर्स और एम रिफर्स द नंबर ऑफ द आइटम्स, है ना, जो भी एन जो होता है, एम रिफर हमारा नंबर होता है, वो एन इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुई है वैल्यू, तो उतनी बार ही आपका फॉर्मूले में एम आता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ 5 बार 5 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। अगर ये आपके 3 नंबर ऐसे रिपीट होते तो 3 ही बार होता है, अगर 2 बार नंबर होते हैं तो 2 बार ही होता। तो यहाँ पे क्योंकि 5 बार नंबर्स थे जो रिपीट हो रहे थे, तो हमने 5 टाइम्स द रिपीटिशन इन द किया था, और इसमें रिपीटिशन इन द टर्म में हमने कैलकुलेशन की थी। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रखे हैं तो दैट्स उस वैल्यू को हमने पुट किया और तय किया कि उसको सही से सॉल्व कर ले। तो सोल्यूशन में जब भी हम ये देखते हैं कि जब भी हम रैंक कोरिलेशन देखते हैं या रैंक कोरिलेशन या कोरिलेशन देखते हैं, तो हमेशा ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में है। अगर आपकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं आ रही, इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी है, तो आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पूरी कैलकुलेशन को। ओके, तो ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन है वो पहली बार में ही आपका करेक्ट हो जाए, आपको दूसरी बार रिव्यू करने की जरूरत ना पड़े। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और कई बार क्या होता है, माइनस प्लस की गलती की वजह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं इन अ प्रैक्टिकली वे। तो ट्राई टू इट कि आप उसको सॉल्यूशन जैसे आराम से करें, एंड ट्राई टू कीप माइंड से, आप एक बिल्कुल पीस माइंड से आप उसको चीज़ को सोल्यूशन करें जिसके थ्रू आपको एक करेक्ट आंसर मिल पाए। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा, कोरिलेशन इज़ नाउ वी आर कंप्लीट। अगर कोई भी इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं ना थ्रू अ कमेंट्स एंड थ्रू अ कॉन्टैक्ट टू मी, and try to be focus on this question through on different assignments which I put in a later in different section. Okay, so अभी के लिए फिलहाल इतना ही। Thank you so much for
this session. Next session we discuss about the regression method. That is the method of the uh, data handling. Okay, thank you.